My guest today is Kirti. She's a very talented artist, prepares mouth-drooling brownies, and is a successful entrepreneur. Today, she will help us in understanding that what goes into starting a business from scratch and running it successfully, especially in the field of art. This is Unati, and I welcome you to our today's podcast. Let's get started. Hi, Kirti. Thank you so much for joining us today. And you really look very lovely today. Hi, Unati. Thank you so much. And it's my pleasure to be here. Thank you. Thank you so much. So before we move ahead, we have this kind of a tradition at O Recorded that we play a rapid fire with our every guest. So shall we start with the rapid fire? Yeah. Yes, yes. Okay. Yeah. Your favorite book? My favorite book has always been The Secret. The Secret. So any learnings from the book? Basically a law of attraction. So whatever I have received till now in my life, I have learned it from that only. That how can I achieve my dreams and how can I fulfill all my desires, and how to use the law of attraction in my life. Okay. So second question would be, your go-to social media channel to promote your business. It's Instagram. Instagram. So what do you do in your, what is your favorite pastime activity? My pastime activity is reading books only. And who's your human idol? My human idol is he's a life coach basically, and his name is Master Shriya Karshana. Okay, so anything you would like to tell us about him? Actually, he's a life coach basically, and he's an entrepreneur. So उनकी खुद की लाइफ जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है ना कि अगर आप सुनोगे कभी भी कि कैसे वो एक ड्रॉप आउट से now he's a very renowned life coach and an entrepreneur, and it's all because वो एक law of attraction use करके अपनी लाइफ में सब कुछ बन पाए. Okay. So मतलब I guess कि आपकी लाइफ में law of attraction का इसलिए भी शायद ज्यादा major part होगा. Yeah. And my last question would be कि what is your 2021 goal for your business? For 2021, my goal for my business is that I want to be I want to make my brand a part of each and everyone's celebrations, and because mera jo brand hai, that is related to celebrations only. So I want to be the part of their celebrations, and the main goal of my business is to satisfy my customers as much as I can. Okay. So I guess आपकी tagline भी like ना adding life to colors, right? If I'm not wrong, right? Adding life to colors. So like आपने वो tagline मतलब कैसे सोची? Like it's a unique. मतलब generally लोग करते हैं adding colors to life या ऐसा कुछ करते हैं, but आपका थोड़ा अलग था कि adding life to colors. So उसका मतलब क्या meaning है? Okay. So basically, when I started my business, ना, तो at that time मैं paintings काफी बनाती थी, paintings और sketches बनाना. At that time I thought कि okay, I'll go in this line only कि मैं सिर्फ paintings बना के I'll sell that. But जब मैंने ये start किया था, तब मैंने अपने tagline के लिए कुछ ऐसा सोचा था कि colors में ना मतलब basically because painter वही करते हैं. Colors So, में what? Sorry, what? To add the life in colors. Okay. Basically हम पेंट तो करते हैं, आर्टिस्ट पेंट करते हैं, बट उन कलर्स में भी एक लाइफ भरना एक आर्टिस्ट की हाथ में होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना कलर्स को. सो बेसिकली दैट वाज माय थॉट एट दैट टाइम. सो आई जस्ट चूज दैट एडिंग लाइफ टू कलर्स. आप कितने इयर्स के थे जब आपने ना इतना कुछ सोच लिया? I was around 19. 19, okay. So like मतलब आपके मन में ना बिजनेस का थॉट आया कैसे कि मतलब आर्टिस्ट मतलब आई गेस कि सभी को मतलब काफी लोग होते हैं जिनको आर्ट क्राफ्ट पसंद होता है आर्टिस्ट जैसे, तो उसको ना एज अ बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करना, तो ये आपने मतलब कैसे सोचा? जैसे कि ना स्कूल टाइम पे
मेरे को जब मैं स्कूल टाइम पे थी ना, उस टाइम पे ना शायद आपको याद होगा कि मतलब उस टाइम पे ना मैगजीन्स बहुत चलती थी। तो उस टाइम पे ना मैंने जैसे ना घर पे हम कभी मम्मा के साथ पार्लर चले जाना, वहां पे मैगजीन्स पढ़ी होती थी, उठा के पढ़ने का शौक होता था कि कुछ भी पढ़ा हुआ है पढ़ लो, स्कूल में मैगजीन्स पढ़ी होती थी, उठा के पढ़ना शुरू कर दो। तो वन डे, एक्चुअली आई एम फ्रॉम द बीसीएम स्कूल, तो वहां पे ना रिसेप्शन पे ना मैं वेट कर रही थी अपने मदर का, वहां पे ना एक मैगजीन पड़ी हुई थी। तो दैट आई पिक्ड अप एंड आई सॉ वहां पे ना सब एंटरप्रेन्योर्स की ना पिक्चर्स लगी थी कवर पेजेस पे एंड ऑल। तो देन आई थॉट कि यार मेरा भी यहाँ पे फेस होना चाहिए, मुझे पता तो कुछ भी नहीं था, बस एक थॉट था माइंड में कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि कल को मैं भी ऐसे मैगजीन कवर में आऊं और लोग मुझे भी देखे ऐसे ही स्कूल्स में पढ़ी हो। तो मतलब इतना बेसिक, मतलब बहुत सिंपल सा थॉट था, जैसे एक बच्चे का होता है ना, मेरा वैसे ही एक थॉट था। तो मैंने उसी को आगे जाके जब मैंने सोचा कि मैंने कुछ करना है लाइफ में, तो आई टुक कॉमर्स। तो आई थॉट कि चलो मैं कॉमर्स करूंगी ना, मे बी बिजनेस का मेरे माइंड में कुछ आ जाएगा। वो पढ़ते पढ़ते मुझे बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो आई थॉट कि यार व्हाई नॉट जस्ट ट्राई समथिंग विच आई एम गुड इन। सो बेसिकली आई वाज गुड इन स्केचिंग एंड ऑल, बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली ना मैं हमेशा ना अपनी स्केचेस करती थी। मतलब कोई भी क्लास चल रही होगी, कॉपीज के बीच ना स्केचिंग करनी शुरू कर दी, जो भी मुझे दिखा उसकी स्केचिंग करनी शुरू कर दी। टीचर सामने खड़ के पढ़ा रहे हैं, उनकी स्केचिंग करनी शुरू कर देना, ड्रॉ करना शुरू कर देना उनको। तो बेसिकली वहां से मेरा इंटरेस्ट बहुत स्टार्ट हो गया इन चीजों में। फिर उसके बाद जब मैंने बिजनेस के बारे में कुछ पढ़ा समझा कि क्लासेस में, क्योंकि बेसिकली मैं उसी को ज्यादा बिजनेस के बारे में ही ज्यादा समझ पाती थी कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। एट दैट टाइम वो थॉट मेरे माइंड में आया, फिर मैंने देखा कि मैं किस में अच्छी हूँ। मुझे बहुत, मतलब मेरी फ्रेंड्स भी बोलती थी कि तेरी स्केचिंग कितनी अच्छी है, मतलब वो इतनी तारीफें करते थे। तो आई थॉट कि चलो यही ट्राई करके देखते हैं। तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग द स्केचिंग, पेंटिंग्स एंड ऑल। सो ऐसे ही मेरा स्टार्टअप हुआ था। तो जैसे अभी आप ना मतलब प्रॉपर ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर और मतलब बिजनेस में आप आ चुके हो, तो लाइक आप अच्छा। बिजनेस को ना कैसे परसीव करते हो, लाइक व्हाट इज बिजनेस फॉर यू? So basically for me, business is to make people smile. बिकॉज मेरा जो मेजर गोल था फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, मैंने यही देखती थी कि जैसे ना लोग खुश नहीं रहते, ज्यादा जल्दी खुश नहीं होते, पर हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, दे आर लाइक उनके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल होती है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैं सोचती थी यार व्हाई नॉट जस्ट मेक पीपल स्माइल। तो एट दैट टाइम उसके बाद से मैंने सोचा था कि वो गिफ्ट देख के खुश होते हैं, तो ऑब्वियसली लेट्स मेक समथिंग जिससे वो उनको और खुशी हो। और हैंडमेड जब आप कुछ बनाते हो ना किसी के लिए, तो मतलब दैट हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स। So that's why I just thought, and for me, it's always have been to make people smile in whatever way I can, and to satisfy each and every customer who come to me and order something from me. तो अभी मतलब आपके पास ना एज इन लाइक बिजनेस में या हैंडमेड गिफ्ट्स में आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज अभी अवेलेबल हैं? Okay. So basically मेरे business में बस 4 type of categories available हैं. First is customized and personalized gifts. और इसमें भी मेरे पास 5,000 plus gifts almost हैं which we make for the people. And it includes all kind of sublimation work, printing work, customized work, and each and everything they want. So, and the second category is cakes. I now now I have started making cakes for the people. And third category is event decorations. So yeah, and my fourth category is all kind of quirky jewelry or accessories. तो आपने अभी जो पहना है ये भी इट्स फ्रॉम योर कलेक्शन ओनली? Yeah, yeah, तो yeah, it's from my लाइक collection. so you make it like yourself only? Yeah, I have my team with me also, which help me a lot in lot of things, because कुछ gifts ऐसे होते हैं जो मैं खुद नहीं, that's all machinery work ना, तो उसके लिए लेबर रखा हुआ है हमने, और काफी टीम रखी हुई है आगे हमने, तो वो सब कुछ सारा काम करते हैं। ज्वेलरी साइड पे भी एक टीम रखी हुई है, they work and make the jewelries according to the customer's preference and everything. तो जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके पास हाउ मेनी कैटेगरीज वर देयर? Actually, there was only one category, that is handmade gifts. There were no Okay. customized gifts, no personalized gifts, nothing sublimation or printing. There was nothing. I just make handmade gifts with my own hands. So that was the only category I had.
तो जब आपको मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर मिला था तो उसका कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे? Sure, sure. Actually, my first order was from my sister's house only, and because she got married in Ambala, and at that time ना मैंने randomly ना अपनी एक friend के लिए एक scrap book create की थी कुछ time पहले ही. तो that was a gift for my from my side to my friend. एंड जब मैं वहां पे अपनी मतलब सिस्टर के घर पे गई थी ना, तो वहां पे जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अबाउट कि मुझे ना कुछ गिफ्ट बनाना है, तो मेरी सिस्टर ने जस्ट रैंडमली बोल दिया था कि कीर्ति से पूछ लो, इसको काफी नॉलेज है. देन मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई, मैंने उनको बोला आर्टिस्ट पे चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, बट शी सेड नहीं यार कुछ यूनिक चाहिए. सडनली ना वो मेरे फोन में पिक्चर्स देख रहे थे, एंड शी सॉ द पिक्चर ऑफ माई स्क्रैप बुक. And she said, "What is this?" And I told her everything that I have made this for my friend only. So she said, "Just make it for me." So I thought, okay, I have never took an order for this, na. So then she said, no, just make it for me. I know you can do it. And I thought, I said, चलो, it's okay, I'll do it. And उन्होंने मुझसे पूछा कि कितनी पेमेंट होगी इसकी. I just randomly said 350, because मुझे ना उस टाइम पे इतना कॉस्ट निकालना और कभी सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसे ऑर्डर आ जाएगा. तो ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडमली 350 बोल दिया. दैट वाज अ नेम एल्बम. तो आज उसका रेट उसका प्राइस इज अराउंड 1500 राइट नाउ. वाह. बिकॉज विद द टाइम ना काफी चेंजेस भी हुए हैं उसमें, तो उसके कारण ना ये वो 350 की आज 1500 में सेल हो रही है. और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो 1500 में कर रही हूँ. आप मतलब अगर हम किसी और से भी पूछते हैं ना, तो अराउंड 15 to 1800 में बनती है वो चीज, बट मुझे पता ही नहीं था. तो आई जस्ट गिव इट फॉर द 350 ओनली. तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम माय रिलेटिव्स ओनली. नाइस. तो अभी लाइक आपके ऑर्डर्स वगैरह मतलब पर डे या ऐसा मतलब मंथली कितने हो जाते हैं मतलब आपके पास ऑर्डर्स वगैरह? ऑर्डर्स वगैरह तो मंथली ये होता है कि डिपेंड करता है ओकेजन के ऊपर. अगर तो किसी मंथ में ओकेजन है, सपोज अब राखी आने वाली है, तो बेसिकली अब ऑर्डर्स का है, अब तो रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं. तो अभी ऐसा जा रहा है कि अराउंड मेरे 50 ऑर्डर्स हो जाते हैं इन 1 मंथ, अगर ओकेजन्स नहीं है तो. बट अगर ओकेजन्स है तो अराउंड 100, 150, 200 ऑर्डर्स जाते हैं विद इन अ मंथ. वाओ, दैट्स सो गुड. या तो आप मतलब इवेंट प्लानिंग में क्या करते हो, लाइक डेकोरेशन या क्या मतलब आपकी निश है उसमें, लाइक कौन सा डिपार्टमेंट आप संभालते हो? सो बेसिकली मेरा इवेंट प्लानिंग में डेकोरेशंस है कि आई हैव हायर्ड अ लेबर, आई हैव हायर्ड अ टीम बेसिकली, जो कि जिनको काम सब समझा देती हूँ, तो वो जाके वहां पे डेकोर करते हैं. और मतलब मैं भी वहां पर होती हूँ, तो उनको प्रॉपर गाइड करना, सब कुछ बताना कैसे होना है. बिकॉज कस्टमर का ये है ना कि ऑन द स्पॉट कस्टमर कुछ भी चेंज करवा सकता है. राइट. गुस्सा भी आता होगा कई बार आपको? गुस्सा तो नहीं आता, बट बिकॉज आई नो कि चलो एक कोई ओकेजन किसी के लिए स्पेशल बनाना, तो उनकी नीड्स तो ऐसी होती हैं कि वो डिमांड्स करते हैं, क्योंकि उनके लिए होता है कि वो जिनके लिए करवा रहे हैं, तो उनके फेस पे बहुत स्माइल आए, वो बहुत स्पेशल फील करें अपने आप को लेकर. तो गुस्सा नहीं आता, देख के अच्छा लगता है कि चलो यार कितना प्यार है लोगों में. ये देखकर अच्छा लगता है. अभी आपके ऑर्डर्स मतलब जैसे आप लुधियाना से हो, तो अभी लोकल ही है या मतलब कहीं बाहर भी जाते हैं आपके ऑर्डर्स? नहीं, बेसिकली मेरे ऑर्डर्स ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं. ऑल ओवर वर्ल्ड? तब मतलब इंटरनेशनल शिपिंग कैसे होती है? इंटरनेशनल शिपिंग के लिए मतलब हमारे कुरियर मैंने रखा हुआ है अपना. तो बेसिकली कुरियर के साथ सब मतलब सेटिंग वगैरह होती है हमारे ब्रांड की. तो पता होता है कि कुरियर बॉय खुद ही आ जाते हैं, उनको पता होता है कि इस डेट पर आना है, उन्होंने हमें डेट्स दी होती है, तो वो आके ले जाते हैं, और वो अपने आप इंटरनेशनल का वो खुद ही संभाल लेते हैं. ओके. तो मतलब इसके लिए भी बेसिकली एक मतलब टीम में मेंबर रखा हुआ है कि जो कुरियर साइड देख लेता है. तो आपके लाइक अराउंड आई गेस 5 to 6 years की अभी बिजनेस जर्नी हो चुकी है. एंड लाइक जब हम स्टार्ट करते हैं तो देयर आर लाइक ना काफी मोमेंट्स आते हैं जब लाइक स्टार्ट में क्या, इनफैक्ट आई गेस ऑल ओवर द बिजनेस जर्नी काफी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम गलतियां करते हैं, लाइक दैट्स नेचुरल. तो कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट आपके साथ कि आपने कुछ ऐसा हुआ हो या कोई ऐसी गलती जो आप हमारे साथ शेयर करो? हाँ, मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ. And that was from the first order I got from a stranger, basically from a customer, and from my Instagram only.
तो उस टाइम पे ये था कि उन्होंने मुझे ना एक एक्सप्लोजन बॉक्स का ऑर्डर दिया था. दैट वाज अ सिंपल एक्सप्लोजन बॉक्स, बट हाँ स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि चलो फर्स्ट ऑर्डर मिला है, किसी अननोन ने दिया है, तो जस्ट लेट्स मेक इट, और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट बनाना है. तो 3-4 दिन लगा के ना मैंने बहुत मेहनत करके उसको ना बनाया, क्रिएट किया. एंड जब टाइम आया कि इसको कुरियर करना है, क्योंकि एंड आई थिंक शी वाज फ्रॉम केरला और कोलकाता साइड, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट एड्रेस, बट शी वाज फ्रॉम देयर. तो आई थॉट कि चलो ठीक है, आई डिस्पैच इट. मैंने उनसे ना एडवांस ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैंने कुरियर ना भेज दिया. उस टाइम मुझे कुरियर्स पैक करने नहीं आते थे. मैंने उसको लिया, उसको जस्ट रैप किया, पावर रैप से मैंने भेज दिया. आई थॉट कि चलो ऐसे ही चला जाएगा. और जब वहां पर पहुंचा, मुझे ना कॉल आया, मुझे ना चिल्लाने लग गई मेरे ऊपर. शी सेड कि ये क्या किया आपने, आपको कुरियर पैक नहीं करना आता, आप बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. तो आई थॉट कि मैम आई एम सॉरी, मुझे सच में कुरियर पैक करना नहीं आता. कहती पहले कुरियर पैक करना सीखो, तो आप फिर ऑर्डर लिया करो. तो आई सेड ओके मैम, आई एम रियली सॉरी. देन आई थॉट कि चलो ठीक है, आई मैं सीख ही लेती हूँ जाकर. तो फिर मैं उस टाइम पे ना, उस दिन मैं इवनिंग में कुरियर ऑफिस गई. मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज जस्ट टीच मी हाउ टू पैक अ कुरियर, आई विल पे यू एक्स्ट्रा, आप मुझे प्लीज कुरियर पैक करना सिखा दो. तो उन्होंने फिर मुझे कुरियर पैक करना सिखाया. एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज, मतलब इट वाज अ वेरी ब्लंडर मिस्टेक आई डिड एट दैट टाइम, कि मैंने ऐसे ही रैप करके भेज दिया बिना सोचे. तो उससे मैंने मतलब काफी कुछ सीखा कि उस, बट ये है कि वो जो कस्टमर भी थी, उन्होंने समझा इस बात को. मैंने उसको दोबारा बनाकर भेजा, एंड शी वाज टोटली टोटली सेटिस्फाइड, एंड शी सेड सॉरी कि मतलब उसने मुझसे ऐसे बात करी. तो आई से शी सेड कि हाँ चलो मैं समझती हूँ. एंड नाउ आल्सो शी इज माय वेरी वेरी गुड कस्टमर. तो ऐसा है कि मतलब अभी तक के मेरे को जितने कस्टमर्स मिले हैं ना, दे आर लाइक अ फैमिली राइट नाउ विद मी. सो या. अभी आपने इंस्टाग्राम का मेंशन किया कि आपके फर्स्ट ऑर्डर इंस्टाग्राम से आया था, तो आपने इंस्टाग्राम का नेम पहले बताया कि कला कीर्ति कुछ करके रखा था, एंड कला कीर्ति, राइट? तो अभी आप आई के तथ्या के नाम से उसको यूज कर रहे हो, राइट? तो इट्स द सेम अकाउंट ओनली? Yeah, with the same account. I changed the username and all. ओके, तो तथ्य का मतलब क्या रीजन था? ताथ्या का was basically facts. It मतलब ताथ्या रिप्रेजेंट ना फैक्ट्स. ताथ्या इज इन हिंदी एक्चुअली. ये जो ताथ्या वर्ड है ना, ये मैंने हिंदी से उठाया था कि चलो फैक्ट्स, मतलब किसी को रियलिटी दिखानी, फैक्ट्स दिखाना. उस टाइम वो पेंटिंग के थॉट से ही मैंने लिया था. बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए ना, जो उसके माइंड में क्रिएशंस होती हैं, मतलब वो अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करता है, रियलिटी दिखाता है टू द वर्ल्ड, एंड फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है. तो वो थॉट से आई थॉट कि चलो ताथ्या यूनिक सा नेम है, तो इट विल गो. तो मैंने बस वो ऐसे ही रख दिया नेम. तो आज मैंने ये भी देखा है कि ताथ्या नाम से इतना कुछ है नहीं, कोई प्रोफाइल भी नहीं है. तो आई फील ब्लेस्ड कि चलो ठीक है, मेरा थोड़ा सा यूनिक नेम है, तो आई एम हैप्पी विद दैट. तो मतलब जब भी हम कोई भी बिजनेस या कुछ भी पर्सनल लाइफ में स्टार्ट करते हैं, तो हर्डल्स आर नॉर्मल, मतलब हर किसी की लाइफ में हर्डल्स आते हैं, कुछ होता है. तो और आपने मतलब जब स्टार्ट किया, यू वर जस्ट 19 व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस. सो आपकी लाइफ में क्या हर्डल्स आए थे? लाइक आई एम श्योर कि आए ही होंगे, तो क्या हर्डल्स थे? जैसे कि आपने बोला कि हर्डल्स तो सबकी लाइफ का पार्ट है. So basically we learn a lot from that only. So mistakes and failures, they teach all this teaches a lot. तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी मुझे, क्योंकि बेसिकली जो फील्ड मैंने अडॉप्ट की थी, दैट वाज फ्रॉम द आर्ट एंड क्राफ्ट साइड. तो हमें ना स्कूल टाइम से एक सिखाया जाता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट इज जस्ट अ हॉबी. तो वही सब कुछ सबके माइंड में होता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट लिया, चलो एज अ हॉबी लिया बच्चे ने, तो इट्स ओके. बट स्टार्टिंग में आप कुछ भी जब न्यू लेके आते हो ना, तो कोई भी आपका आइडिया ना जल्दी पसंद नहीं करते जब तक उनको उस चीज की नॉलेज ना हो. तो बेसिकली मेरा जो फील्ड था, इसकी भी नॉलेज किसी को इतनी नहीं थी, नॉट इवन इन माय फैमिली एंड ऑल, कि इसमें क्या कर सकते हैं या क्या होगा. तो जब भी आप किसी को अपना आइडिया एक्सप्लेन करते हो ना, तो दे आर लाइक ओके, जस्ट देख लो क्या करना है. क्योंकि ये होता है ना कि सबको यही लगता है, सबके माइंड में ना एक चीज, अगर आप किसी को बोलोगे ना दैट ये क्राफ्ट आइटम्स बनाती है, इवन नॉर्मली भी हम किसी को बोलते हैं, उनके माइंड में यही आता है कि चलो ठीक है, पेपर से कुछ कट वगैरह करके ना कुछ बना देते होंगे, जैसे वो स्कूल टाइम में बनाते थे. तो वैसे ना, मतलब एक इमेज बन चुकी है क्राफ्ट पर्सन की और एक आर्टिस्ट की. लोग हमें बोलते हैं कि चलो ठीक है,
क्राफ्ट ही अडॉप्ट किया है, तो आगे क्या करना है, आगे बताओ क्या करना है। तो आपने अपने उसके लिए क्या सोचा है, जॉब कौन सी करनी है, और तो मैं बोलती थी नहीं नहीं यही मेरा काम है। डायरेक्ट नहीं 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 आगे क्या करना है। तो मैं इसलिए कि चलो ठीक है, आई जस्ट शो यू मैं अब क्या करूंगी अब आगे। तो मतलब मैंने हमेशा ना उनकी बातों को कभी ऐसे सीरियसली नहीं लिया, बट हाँ फील बहुत होता था उस टाइम पे, बिकॉज छोटी थी तो इतना फील बहुत होता था कि यार ऐसे बोलते हैं सब सारे, तो विल आई बी एबल टू डू समथिंग इन माई लाइफ, जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो कर पाऊंगी। तो कहीं मेरे को रोक तो नहीं देना चाहिए, इसको बंद तो नहीं कर देना, कहीं मैंने गलत लाइन तो नहीं पकड़ ली। मैं हमेशा ये सोचती थी। बट ये सब जैसे ना मैं सोच के ना मैं सो जाना, मैं जो अगले दिन उठती थी ना मैं यही सोचती थी कि नहीं यार अब करके दिखाना है, अब जो मर्जी हो जाए। मैं अपने आप को बोलती थी हमेशा मिरर में देख के कि नहीं कीर्ति, यू हैव टू डू इट नाउ, यू हैव जस्ट मतलब आप तुमने पकड़ लिया ना अब इसको, तो करके ही दिखाओ सबको। अब सबको ये करके दिखाओ कि अब मतलब मैं क्या कर सकती हूँ बेसिकली। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत कुछ सुना, मतलब बहुत सपोर्ट तो इतना नहीं मिलता था, बट हाँ जब लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई ना कि मैं कर क्या रही हूँ, मेरा सच में बिजनेस है, और आई क्रिएट गिफ्ट्स फॉर पीपल, आई रियली मेक पीपल स्माइल। जब उन्होंने इंस्टाग्राम चेक करना शुरू किया मेरा, जब उन्होंने खुद मुझसे ऑर्डर्स डालने शुरू किए, तो देवर लाइक यार हाँ ये मतलब अच्छा काम करती है, एंड अच्छा मतलब नाम करेगी एंड ऑल। तो उसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए, न्यूज़पेपर्स में आना स्टार्ट हुआ, तो उनको समझ में आ चुकी थी कि नहीं शी जस्ट चोज द राइट पाथ। तो आपने ना मतलब जैसे पहले भी मेंशन किया था कि ना आपकी लाइफ में बुक्स ने मतलब काफी मेजर रोल प्ले किया था, तो और सीक्रेट का जैसे आपने मेंशन किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली मतलब ना वर्क कैसे करता है, लाइक आपका क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, एक पढ़ा तो आई गेस हम सब ने मैक्सिमम बार होगा, बट आपने एक्सपीरियंस किया है, तो क्या एक्सपीरियंस होता है, मतलब कैसे वर्क करता है वो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली यही है ना कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मैटर करता, मैटर करती है आप कितनी मेहनत करते हो, आप अपने डिजायर्स को लेके कितने सीरियस हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तभी वो काम करता है जब आप अपने डिजायर्स को लेके सीरियस हो, आप अपनी लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में उसने एक छोटा सा जो पार्ट प्ले किया था, दैट वाज मैं आपको बताया था ना मैगजीन के बारे में इन द स्टार्ट, कि उस टाइम पे ना मैंने ये सोचा था कि मैंने ना वो मैगजीन ना वैसी सिमिलर मैगजीन लेकर ना अपने घर पे जैसे रख ली थी। तो मैंने बाहर से बाई की, मैंने रख ली, मैंने उसमें से फेस कट किया एक लड़की का जो कवर पेज पे थी, मैंने उस पर अपना फेस लगा दिया। तो एट दैट टाइम ना आई थॉट कि चलो यार मैं भी किसी टाइम ना मैगजीन में आऊंगी। तो उसके बाद जब मैं उस टाइम पे मुझे फोन मिले थे आई थिंक +2 में। +2 में ना मेरे को एप्स एडिटिंग करनी बहुत पसंद थी, तो मैं ना हमेशा मैगजीन का एक कवर पेज लेती थी। उस टाइम पे पता नहीं बहुत सारी एप्स आती थी जिसमें ना मैगजीन कवर पेजेस बने होते थे, जिसमें आप अपनी पिक्चर्स लगा सकते थे। तो आई ऑलवेज ट्राई टू एडिट द पिक्चर्स एंड और मैं अपने आप को कवर पेज पे लगा लेती थी एंड उसको देखती रहती थी, तो बहुत देख के ना खुश बहुत होती थी कि यार चलो मैं भी आ गई मैगजीन में। क्योंकि वो मुझे पता नहीं था कि मैं कभी कर पाऊंगी या नहीं, बट जब मैंने उसके बाद मैंने +2 में ना मेरे टीचर ने मुझे द सीक्रेट पकड़ाई थी, जो उन्होंने बोला था कि तुमने ये पढ़ के देखना। तो जब मैंने वो पढ़ी फिर मैंने उस चीज को सीरियस लेना शुरू किया, एंड आफ्टर 3-4 years मैं खुद मैगजीन के कवर पेज पे आई एज एन एंटरप्रेन्योर इन लुधियाना। Wow, that's so great. मतलब थैंक यू। like you are a living inspiration for I guess everyone around कि अगर आप चाह लो, अगर आप सोच लो, तो you can basically achieve it, मतलब कर यस। सकते हो। तो द सीक्रेट के अलावा भी मतलब फिर आपने बुक्स एक्सप्लोर की या कुछ ऐसा हुआ, या लाइक बुक्स ने एक्सेप्ट फॉर लाइक द सीक्रेट के अलावा कुछ आपकी वैसे ओवरऑल हेल्प की हो, या वैसा कुछ हुआ हो? एक्चुअली द सीक्रेट के अलावा ना मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, बिकॉज आई एम बेसिकली अ बुक लवर। तो मतलब मुझे ऐसा होता है कि अभी भी मेरे पास इतनी बुक्स पढ़ी हैं, तो बुक्स हेल्प्ड मी अ लॉट इन एवरीथिंग, एंड आई थिंक ना बुक्स ही ऐसी एक चीज है जो किसी को भी ना चेंज कर सकती है, या किसी को भी उनकी लाइफ की ना एक अच्छी डायरेक्शन दिखा सकती है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड रीड द बुक्स related to the life, related to the psychology of people, and related to the your desires and all. So एक और बुक मैंने पढ़ी थी, that was Think and Grow Rich, and it is one of the best seller right now also, and from the I think past 10 years it is the best seller. एंड इस बुक ने सिर्फ मुझे ही नहीं बट और भी जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं राइट नाउ, और हमसे पहले भी जो हुए हैं, यही बुक ने इतना ज्यादा हेल्प किया है। एंड आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्लीज रीड दिस बुक एंड जस्ट चेंज योर लाइफ एज यू वांट इट टू बी। ओके,
सो लाइक मैंने ना आपके इंस्टाग्राम फीड पे चेक किया था कि फैजल खान जो हैं वो कोरियोग्राफी कर रहे हैं, राइट? फर्स्ट लाइक उससे पहले ही प्लेड दिस महाराणा प्रताप रोल आल्सो इन व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सीरियल, महाराणा प्रताप ओनली आई गेस। हाँ या तो उन्होंने भी ना आपकी रिकमेंडेशंस वगैरह या शायद आपको टैग किया था, ऐसा कुछ था। सो लाइक वो आपने गिफ्ट भेजे थे या मतलब वो क्या था उसमें? ये था ना कि जैसे फैसल खान का तो ऐसा था कि जैसे ना उनके उसके जो फैन पेजेस होते हैं ना, ये सेलेब्स के जो फैन पेजेस है बेसिकली, वो हमें अप्रोच करते हैं फॉर द गिफ्ट्स एंड ऑल, बिकॉज जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी ना हर एक सेलेब्स का ना एक गिफ्ट सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे उनके फैंस उनको गिफ्ट्स भेजते हैं। तो ऐसे फैसल खान के ना कुछ फैन पेजेस थे, तो दे ऑल आर बेसिकली अ टीम एक्चुअली। ये मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे काम की मतलब बाद में पता लगा। तो ये सब ने मिलके, तो एक ना उसमें से फैन पेज ने मुझे अप्रोच किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे गिफ्ट बनवाना है। तो आई जस्ट आस्क्ड कि हाँ किसके लिए बनवाना है आप बता दो। तो ही सेड फॉर द फैजल खान। मैंने कहा विच फैजल खान? तो ही सेड द एक्टर। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, इट्स ओके। आई वाज वेरी एक्साइटेड बेसिकली फ्रॉम इनसाइड, बट आई सेड कि चलो ठीक है, आप बता दो आपको क्या बनवाना है। तो फर्स्ट डे उनको जब हमारा गिफ्ट गया, ही लाइक्ड इट अ लॉट, एंड उनकी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं अभी तक के। फैजल खान को जितने भी गिफ्ट्स गए हैं फ्रॉम द पास्ट 4 years, इट इज फ्रॉम तात्या ओनली। या और एंड राइट नाउ ऑल्सो ना कि जो भी इनके फैन पेजेस हैं वो अब सबके सभी मतलब हमारे ब्रांड से गिफ्ट्स बनवाते हैं और उसको भेजते हैं, बिकॉज दे नो कि उसको हमारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं। एंड इवन खुद फैजल खान ने लास्ट टाइम राखी पे ना एक उसको राखी बॉक्स गया था, उसके ना एक मतलब एक सिस्टर बने हुए हैं, उन्होंने मुझसे ऑर्डर किया था तो उसको भेजा था। एंड ही स्पेशली जस्ट शोड each and everything, each and every element of that box in his stories and tagged me as well with it. एंड उसके बाद उसने मुझे खुद अप्रोच किया था फॉर सम ऑर्डर्स एंड ऑल, एंड ही रिकमेंडेड माय पेज टू हिज फ्रेंड्स हु आर द कोरियोग्राफर्स एंड ऑल। ओके, तो उसके अलावा भी मतलब आपका कुछ सेलिब्रिटीज के साथ एक्सपीरियंस है? और लाइक आपका लाइक सॉरी आपका एग्जैक्टली नहीं मैं बोलूंगी, तात्या का और सेलिब्रिटीज का कुछ आपस में एक्सपीरियंस है? जैसे कि ना अब मेरे मतलब और भी काफी सेलेब्स हैं जिनके साथ मेरा कोलैब हुआ है या फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर्स डाले हैं। जैसे आपने सुना होगा दिव्यांका त्रिपाठी के बारे में, राइट, इशिता फ्रॉम ये आई ये है डोंट नो, आई डोंट नो दैट मोहब्बतें शो। आई गेस हाँ समथिंग। आई थिंक ये है मोहब्बतें। या तो उनको भी मेरे ड्रीम कैचेस गए हुए हैं, उनके भी फैंस ने ही बनवाए थे। तो ओके, उसके बाद से मतलब सेलिब्स के साथ मेरा काफी अच्छा रहा है अभी तक का। तो आगे लाइक आपका क्या प्लान है मतलब बिजनेस ग्रो करने का? मतलब आप यहाँ जैसे अभी लाइक आप 1 कैटेगरी से 4 कैटेगरीज में ऑलरेडी आ चुके हो, तो लाइक कैटेगरी वाइज एक्सपेंशन के कुछ प्लानिंग्स है आपके अभी? सो बेसिकली मेरा यही एक मोटिव है कि अब जो मेरा ब्रांड है दैट इज तात्या, इसको ना मैं एक ऐसी शॉप बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हर चीज अवेलेबल हो। जो भी आपको अपने सेलिब्रेशंस में जो भी चीजें नीडेड है, आपको कुछ गिफ्ट्स करने हैं, आपको डेकोरेशंस करवानी है, आपको केक्स करवाने हैं, कुछ भी हो तो आपको सब कुछ तात्या पे अवेलेबल मिले, ताकि आपको एक ही शॉप पे सब कुछ अवेलेबल हो एंड यू कैन ऑर्डर एनीथिंग यू वांट टू। तो अभी मतलब आपका कोई ऐसा प्लान है कि फिजिकल शॉप्स ओपन अप करने का, या अभी आप सिर्फ ऑनलाइन ही मतलब उसको एक्सपैंड करोगे? अभी तक तो मेरा ये है कि अभी तो मेरे जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चल रहा है, बट अब आने वाले टाइम में आई एम थिंकिंग कि टू क्रिएट अ वेबसाइट और एन ऐप फॉर माय ब्रांड. So it's my only plan right now. Rest, it's too early to say anything because I'm working on my ambition and passion, and a lot more has to be done. And efforts whichever I'm putting in, I'm sure by the end of 2021 I'll fulfill it. So let's hope for the best. So like do you sometimes feel ki art was your passion, right? And then you converted your passion into business. Like everyone says that you should opt for a career or something that is your passion. But do you sometimes feel like your passion has sometimes lost in the way of business? या मतलब वो जो खुशी you used to get first of all while you were painting or something, वो कहीं lost हो गई है business में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, बिकॉज बेसिकली मुझे आर्ट के साथ क्राफ्ट करना बहुत पसंद था।
तो ये है कि लोगों के लिए कुछ क्रिएट करना, स्पेशली गिफ्ट्स, तो इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ सैडनेस वाला ऐसा कुछ पार्ट है, बिकॉज आई डू बिजनेस फॉर माई सेल्फ। तो इसके लिए जो भी मैं अपने लिए कर रही हूँ राइट नाउ एंड टू मेक पीपल स्माइल, इसमें मेरे दोनों गोल्स फुलफिल हो रहे हैं। तो टू वर्क फॉर माई सेल्फ एंड टू मेक पीपल स्माइल। सो बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मतलब मैं इस फील्ड में हूँ एंड इस बिजनेस में हूँ, कि जिसके कारण लोगों की सेलिब्रेशंस का मैं पार्ट बन पा रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड राइट नाउ। आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस या एवरीवन आउट देयर ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन हम अपना बिजनेस कैसे स्केल अप कर सकते हैं, बिकॉज आज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर प्रेजेंट ऑनलाइन एंड लाइक कितने सारे बिजनेस हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं सब है। एंड आई गेस स्टार्ट करना इज इजी, बट हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया या हाउ टू ग्रो देयर बिजनेसेस इज ज्यादा डिफिकल्ट। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं आपके पास या ऐसा कुछ आपका सीक्रेट जो हमारी ऑडियंस यूज कर सके? So basically, I'll give you an example for this, okay? And जैसे कि ना मैं आपको you just answer me, okay? मैं आपको ना रोज आके 82,400 रुपीज देती हूँ, ठीक है? मैं रोज आती हूँ, मैं आपको आके 82,400 रुपीज देती हूँ, तो आप क्या करोगे उन पैसों का? मैं रोज आकर दूंगी आपको, रोज खर्च हाँ लाइक मोस्ट प्रोबेबली करोगे, हाँ। खर्च कर देंगे। एंड क्या अगर आपको तो लाइक सॉरी आप क्या कह रहे थे? क्योंकि आपको पता होगा कि मैं रोज आऊंगी और मैं आपको रोज आकर 82,400 रुपीज दूंगी, तो राइट। बेसिकली आप उसको रोज खर्च करोगे and you will fulfill each and every dream and you whatever you want to buy and you will buy it or anything. Yeah. So I just want to say कि we all have that 82,400 seconds in one day which God gives us. So just use those 82,400 seconds of your day and एंड उसको प्लीज वेस्ट मत करो, बिकॉज एक तो गॉड आपको आकर रोज आके इतने सेकंड्स दे रहे हैं, आप उसको वेस्ट कर रहे हो, तो बेटर है कि यूज करो उसको और देखो आप लाइफ में क्या कर सकते हो, आपको क्या पसंद है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि नेवर रन आफ्टर मनी, you just chase your dreams and money will come to you. So basically I'm not doing this business for the money, I'm just doing this because it's my ambition, it's my passion. So just follow your passion and whenever you will follow your passion and your ambition, आपको सक्सेस तो मिलनी ही है because you are happy there. तो ऐसा जैसे ना लोग जॉब्स करते हैं, कैरियर्स मैंने देखी हैं, खुश नहीं होते बट दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ मनी और समथिंग, और उनको इतना अर्न भी नहीं कर पाते वो। सो बेटर है कि वो करो जो आपको पसंद है और आप अर्न भी अच्छा कर जाओगे उस टाइम पे, क्योंकि आप दिल से काम करोगे। तो जो भी आपको करना है दिल से करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई भी बिजनेस, सपोज आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थिंक what you like and what you want to do and what you can do. These are the three different things. Just differentiate between these, then you should select in कि मैं किसमें क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। Then select your niche, your market in which you want to work. उसके बाद अपना जब आप स्टार्टअप करते हो, आपको जब ग्रो भी करना है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर कुछ ऐसी चीजें लेके आओ जो ऑडियंस को पसंद हो, वो नहीं जो आपको पसंद हो। तो जस्ट मेन एंड एक्चुअली कस्टमर इज किंग ऑफ आवर मार्केट, वी ऑल नो। सो बेसिकली यू ऑलवेज सी कि आपके कस्टमर्स को क्या नीड है। तो अब जैसे मैंने अपनी कैटेगरीज कैसे ऐड की थी, पहले तो मैं गिफ्ट्स बनाती थी जो मुझे पसंद था बनाना, फिर मैंने चेक किया कि मेरे कस्टमर्स को डेकोरेशंस की भी डिमांड है, दे वांट कि हाँ कुछ डेकोरेशंस हो जाए या कुछ भी, क्योंकि मुझे क्वेरीज आती थी कि आप डेकोरेशंस कर देते हो, इवेंट हमने प्लान करना है ये सब कुछ, तो मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। उसके लिए मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा, तो मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद डेकोरेशन में ही किसी कस्टमर ने मुझे बोला आप केक्स भी प्रोवाइड कर दिया करो, बिकॉज हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है केक्स लेके आना, तो आप ही डेकोर कर दो, आप ही केक्स कर दो और गिफ्ट तो आप खरीदोगे। तो ईच एंड एवरीथिंग, तो इट वाज रिलेटेड टू माय नीश ओनली। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो ये भी कैटेगरी ऐड कर देते हैं। तो एक दिन फिर मुझे किसी की क्वेरी आती है कि आप एसेसरीज भी सेल करते हो, ये क्वर्की वर्क था वो सारा, तो आई थॉट कि चलो लेट्स ऐड द एसेसरी पार्ट आल्सो, बिकॉज राइट नाउ इट्स ट्रेंडिंग टू मच। तो बेसिकली आप ट्रेंड चेक करो क्या है, आप कस्टमर्स की नीड चेक करो क्या है, एंड अगर आप कुछ यूनिक लेके आते हो ना, तो आप वायरल तो वैसे ही हो जाओगे।
Right, right. So except for the things, that I covered, do you think there is something else that you would like to tell our audience, or which I would have not covered and you would like to address? So basically at the end I just want to say that कि आप कोई भी काम करते हो अपनी लाइफ में तो आपको मोटिवेशन के साथ डिमोटिवेशन तो मिलता ही है, तो इट्स ऑल इन योर हैंड्स हाउ यू वांट टू डील इट. सो अगर आपको कोई कह भी देता है, अगर आपको कोई डिमोटिवेट भी करता है कि आपका काम नहीं सही, आप ये क्या कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो जस्ट शो देम ना दैट आपने जो भी मतलब चूज किया है, दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. तो ये आपके हाथ में है कि आपको अपने डिजायर्स को फुलफिल कैसे करना है. आपको अगर अपने पैशन को फॉलो करना है देन बी करेजियस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो कोई कुछ भी कहे, जस्ट फॉलो द राइट पाथ एंड हमेशा अपनी सुनो, मतलब अपने दिल की सुनो बेसिकली, एंड वही करो जो आपको पसंद है, जिसमें आप खुश हो. बिकॉज आप किसी के प्रेशर के अंडर तो काम स्टार्ट कर देते हो, बट बाद में आपको आपसे वो काम नहीं हो पाता. सो इट्स आवर लाइफ, each day we have to take risk. That is the only path you can get the success. So just take risk and start. I guess कि ये conversation audience से ज़्यादा मेरे लिए भी motivational हो गई थी, and maybe I will also try to take risks. And like आपने कहा कि if you think कि आपने कुछ करना है and if you have started, तो बैक आउट करने से बेटर है कि गो वन स्टेप अहेड एंड उसको फिनिश कर दो, वो बेटर है. लाइक आई रियली लाइक दैट आइडियोलॉजी. एंड उसके अलावा व्हाट आई रियली लव्ड इज कि wherever you were saying कि दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करना और ऐसा सब. सो आई गेस कि जब मोटिव ही ये है, तो जब दूसरे आपका मोटिव है दूसरों को खुश रखना इज योर मोटिव, तो आई गेस कि दैट्स डेफिनेटली कि फिर वो चीज सक्सेसफुल होगी ही होगी. लाइक आई गेस कभी भी आप ये इंटेंशन मत करो ना कि आपको दूसरों को हर्ट करना, एंड जस्ट इफ यू थिंक पॉजिटिव एंड थिंक ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड समथिंग, तो आई डोंट थिंक सो कि शायद कभी ऐसा कुछ होगा कि आपको कुछ पुल बैक कर पाएगा. आई गेस like this is also the theme base of your business as well. Yeah. To everyone out there, please do check out Kirti's page. It is by the name Tathya on Instagram as well as on Facebook. I will be linking it in description. She has a wonderful range of cakes, brownies, customized gifts, and I guess whatnot. And Kirti, thank you so much for joining us today. It was very lovely to have you as a guest today. Thank you so much, and it was lovely talking to you, Nati. Thank you. I hope that we get to catch up soon. Sure.